I've been training over 10 years and most people in the gym are stuck at year 1. Today I'll be breaking down the 10 exact principles that I've used to separate myself from the crowd. Assalamualaikum ji, मेरा नाम Zafir है and for those of you that have been following me for a while now and for those of you that have just started following me, let me reintroduce myself to you. I'm a fitness coach by profession, I'm an athlete and I have been in the fitness industry for almost 10 years now. And I've coached many people, helped many people achieve their dream physiques, helped many people transform their lives as a whole, mentally, physically, and in any other sphere that we can talk about. Most importantly, I think I've been able to build a mindset around my clients and that mindset has helped them move forward in life with a better direction. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो I would like to welcome you all और अगर आप पहले से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो you would have known कि मैंने बीच में स्टार्ट किया था, 1-2 व्लॉग्स डाले थे और उसके बाद फिर मैं इनकंसिस्टेंट हो गया था. It's really hard to stay consistent with the longer format content और बस life gets in the way. But now I have come back to YouTube and I plan to do it more consistently and more vigilantly this time. इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं. एक तो नंबर 1 रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट जो है इट्स नॉट इनफ फॉर मी टू कनेक्ट विद माय ऑडियंस, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट में यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम और लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में थोड़ी ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन करना एक बहुत मुश्किल काम है. लॉन्गर फॉर्मेट के साथ वो लोग स्टिक करते हैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस होते हैं अपने गोल को लेके, थोड़ा ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, तो उनके लिए आई बिलीव कि कुछ इन डेप्थ चीज़ें होना भी बहुत ज़रूरी हैं. सिंस आई गेट अ लॉट ऑफ DMs पीपल टेलिंग मी कि आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करें, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करें. So that was the primary reason that I wanted to start long format content again. What this channel is going to be about, primarily उसकी हम बात करते हैं in a while. But I would like to quote the second reason for it is obviously there's another part to it or it is business of course. आप में से जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं आप लोग जानते हैं I've been trying to build a personal brand for myself. मेरी टीम ने मुझे कहा कि this is the right time that we get into longer format content just so people can get to know you better, connect with you better. एंड आप अपने आप को ज़्यादा इन अ लॉन्गर फॉर्मेट प्रेजेंट कर सकें. सो आई थॉट इज़ वेल कि अच्छा चलो लेट्स गिव इट अ शॉट एंड लेट्स गो फॉर इट. इस चैनल पे आपको इन डेप्थ फिटनेस एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा. अभी आई एम सून गोना गेट अ वाइट बोर्ड. द वाइट बोर्ड इज गोना बी हियर. वी आर गोना हैव वाइट बोर्ड सेशंस जहाँ पे मैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स फिटनेस के जो बहुत सारी मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उनको थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूँगा लाइक ए क्लासरूम. मिथ बस्टिंग यहाँ पे किया करेंगे, जिम व्लॉग्स होंगे यहाँ पे. Try to keep you as much updated as I can with whatever is going on. Client experiences, mindset पे हम लोग बहुत बात करेंगे. mindset building पे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि एक resilient और एक consistent mindset के लिए ज़रूरी होती हैं. We will be breaking down the exact systems that I have used to build discipline in my lifestyle and which are very easy to implement for anybody that wants to build discipline in any sphere of life, let alone fitness. We'll have fun basically. So just starting off the first video with the concept के मैंने 10 सालों में क्या सीखा और 10 प्रिंसिपल्स जो मैंने आउटलाइन किए हैं अपने ट्रेनिंग और लाइफस्टाइल के अंदर जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, उन्हीं प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करूँगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा. आज बाय द वे आई हैड अ पुल सेशन, एन अमेजिंग पुल सेशन. आई स्टार्ट ऑफ विद डेडलिफ्ट्स. मुझे सिर्फ बात करते हुए देखेंगे तो शायद ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो जाए, तो आई जस्ट ऐड सम शॉर्ट्स, वर्कआउट के कुछ शॉर्ट्स बीच में डाल दूंगा so you can enjoy diving right into them. Number 1, consistency over motivation. मैं इस पे बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ इवन इन माई शॉर्टर फॉर्मेट कंटेंट जो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ और वैसे भी इन जनरल ऑलमोस्ट एवरी वीकली चेक इन जो मेरा क्लाइंट्स के साथ होता है उसमें हम लोग इस चीज़ पे तो बात करते ही करते हैं कि वाई कंसिस्टेंसी इज़ ऑलवेज अबव मोटिवेशन. मैं एक बात बहुत ज़्यादा करता हूँ कि मोटिवेशन जो है वो एक फीलिंग है. इट्स अ फीलिंग, ठीक है. और आप अपनी ज़िंदगी को जब भी किसी फीलिंग के अराउंड बेस करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव ही निकलेगा. अगर आपकी द एंटायरिटी ऑफ योर लाइफ और द मेजर डिसीजंस ऑफ योर लाइफ आर बेस्ड अराउंड अ फीलिंग एंड नॉट रैशनैलिटी और रैशनल, तो फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव ही निकलेगा. वेदर इट्स हेट्रेड, वेदर इट्स मोटिवेशन, वेदर इट्स लव, वेदर इट्स any feeling you can, jealousy for example. But if you are basing your decisions around a feeling, वो डिसीजंस कभी भी रैशनल और एप्लीकेबल डिसीजंस नहीं है. मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज़ अ टेम्पररी स्पाइक इन योर डोपामिन जिसकी वजह से आपका दिल करता है कि आप कोई काम कर डालें बस, और ये कुछ टाइम लास्ट करती है और उसके बाद फिर देयर इज़ अ डाउनग्रेड टू इट. अब मोटिवेशन आने जाने वाली चीज़ है, ये आएगी तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे कुछ करने के लिए. हो सकता है आप कोई पहला कदम उठा लें किसी चीज़ के लिए,
या अगर किसी चीज़ में काफ़ी टाइम से स्लैक ऑफ कर रहे हैं तो दोबारा से उसको शुरू कर लें। लेकिन उस चीज़ को वो कहते हैं तोड़ पहुंचाने के लिए या एंड तक पहुंचाने के लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से ही आती है। और डिसिप्लिन लाने के लिए आपके पास कुछ सिस्टम्स हो सकते हैं। देयर आर सम सिस्टम्स दैट आई हैव इम्प्लीमेंटेड, जो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। But there are systems to how you can be disciplined. Discipline basically means doing what needs to be done regardless of how you feel, what you feel. जो काम करना है वो करना है और उसको consistently करना है। Number 2, progressive overload is non-negotiable. बहुत सारे लोग जिम में ये गलती करते हैं कि आप उनको देखेंगे तो हर हफ्ते वो सेम वेट्स, सेम नंबर ऑफ रेपिटेशंस या सेम ही एक्सरसाइजेस, सेम पैटर्न ऑफ वर्कआउट्स बेसिकली फॉलो कर रहे होते हैं। और उन्होंने कुछ ट्रैक नहीं किया हुआ था कि उनका लास्ट वर्कआउट सेशन कितना इंटेंस था, उन्होंने क्या वेट लगाया था, वो स्पेसिफिक वेट से कितने रेपिटेशंस लगाए थे। बस वो एक रूटीन बन गई है जिम की, एक रूटीन बन गई है एक्सरसाइज की, विच इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन इफ़ यू वांट टू बिल्ड गुड मसल एंड गुड क्वालिटी टिश्यू इन यू, तो फिर आपको प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है अगर आप चीज़ों को ट्रैक करें। प्रोग्रेशन 3 तरीके से होती है। नंबर 1, यू इंक्रीज द वेट। नंबर 2, यू इंक्रीज द नंबर ऑफ रेप्स। नंबर 3, यू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर सेट्स एंड रेप्स। ये है वो 3 तरीके जिससे आप प्रोग्रेशन कर सकते हैं। इफ़ यू रियली वांट टू प्रोग्रेस ऑन इट, तो ये 3 चीज़ें हैं, इनको इम्प्लीमेंट करें, इनको एग्जीक्यूट करें एंड ट्राई दिस आउट फॉर 3 to 4 months इन दिस। नंबर 3, रेप क्वालिटी ओवर ईगो लिफ्टिंग। ये बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि बस वो वज़न को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दे हैव नो माइंड मसल कनेक्शन, नो थॉट प्रोसेस कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या मैं किस मसल को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेप क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ईगो को जिम के दरवाजे के बाहर छोड़ के आना है और अपनी एक्सरसाइज और एग्जीक्यूशन को अच्छे से परफॉर्म करना। देखें, ईगो भी 2 तरह की है। एक ईगो वो है जो आपको पुश करती है आप ज़्यादा करें, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए ईगो होना बहुत ज़रूरी है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ईगो जो आपको पुश करेगी, यार मैं आई कैन डू मोर, आई कैन डू बेटर। लेकिन जो दूसरी ईगो है कि बस लोगों को दिखाने के लिए जस्ट टू क्रिएट एन इम्प्रेशन, एक शो पुट अप कर रहे हो, दैट्स नॉट नीडेड। तो वो चीज़ हमेशा नुकसानदेही होगी, उससे इवेंचुअली आपको इंजरीज हो सकती हैं एंड यू हैव लॉट टू रिस्क। नंबर 4, ट्रेनिंग क्लोज टू फेलियर। बहुत सारे लोग फेलियर को मिसकैलकुलेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। लोगों को लगता है कि वो फेलियर हिट कर रहे हैं, लेकिन वो देयर नो वे क्लोज टू फेलियर। क्योंकि मैं इन पर्सन सेशंस भी देता हूँ, मैं लोगों को ट्रेन करवाता हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लोगों ने अपने जहन में एक पैटर्न बनाया हुआ है, 8 रेप, 10 रेप, 12 रेप, ठीक है। जैसे लोगों को OCD हो, अगर ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स में से कोई आ जाता है, तो ऑड नंबर्स आ जाते हैं तो उनको OCD उनका ट्रिगर होता है। तो या तो 8 लगाएंगे, या तो 10 लगाएंगे, या तो 12 लगाएंगे। और जब उनसे पूछें हम, या मैं उनसे पूछता हूँ कि आप और कर सकते थे, तो वो कहते हैं हाँ यार मैं 6 या 7 और कर लेता, या मैं 2-3 और कर लेता। तो दैट मीन्स यू हैव नॉट पुश्ड योरसेल्फ इनफ क्लोज टू फेलियर। सी, आपके मसल्स को एवरी टाइम दे नीड अ न्यू स्टिमुलस, ठीक है। वो स्टिमुलस कैसे आएगा? वो जब आप क्लोज टू फेलियर हिट करेंगे तब आएगा। आपके मसल्स बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं। अगर आप क्लोज टू फेलियर नहीं ट्रेन कर रहे और आप RP 5-6 पे ट्रेन कर रहे हैं या 7 पे ट्रेन कर रहे हैं, या आप यू स्टिल हैव 4 to 5 reps in reserves, तो इसका मतलब है आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। दोज वर योर वार्म अप सेट्स। आपने वो स्टिमुलस मसल को दिया ही नहीं जो उसे ग्रोथ के लिए चाहिए। दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। यू नीड टू बी progressively overloading and training close to failure. The ideal rep range that you should aim for is 1 rep in reserve or 2 rep in reserve. Number 5, recovery is part of training. I have been someone who has always been struggling with sleep. मेरी नींद बहुत बुरी है, बचपन से 4 से 5 घंटे की नींद है, और मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, मतलब आई एम समबडी हु हैज़ दिस यूनिक एबिलिटी कि मैं 4-5 घंटे में बहुत सा फंक्शन कर लेता हूँ। लेकिन फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप. Might be a new concept to you, but there's a thing called the circadian rhythm, and if you do not sleep on time and you don't wake up on time, get some sunlight in, आपका circadian rhythm messed up होता है. This happens mostly with my online remote clients जो कि freelancers हैं या रात को काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ ये इशू बहुत ज़्यादा होता है. Having bad circadian rhythm messes up your metabolism, messes up your hormones, and messes up your overall energy throughout the day. So you need to be focusing on your sleep quality, and you need to be focusing on the recovery part as well. There are certain recovery protocols that should be mandatory if you're training hard, in terms of your diet, in terms of the food protocols that you take, and in terms of your sleep. All should be managed well. Number six is simplicity wins.
सी एवर सिंस द इंटरनेट केम थ्रू और हमारे पास एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई इंटरनेट की, एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये कि जिस तरह एक्सेसिबिलिटी हमारे पास थी हर चीज़ कहीं भी घुस के व्यू करने की, उसी तरह एक्सेसिबिलिटी लोगों के पास भी आई कहीं भी कोई भी चीज़ पोस्ट करने की। तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है एंड इंस्टेड ऑफ यू बीइंग अंडर इन्फॉर्म्ड वी लिव इन एन एज जहाँ पर हम ओवर इन्फॉर्म्ड हैं और हमें सही और गलत इन्फॉर्मेशन के बीच में फ़र्क करना नहीं आता। तो इसी तरह मैंने भी बहुत सारी फैंसी एक्सरसाइजेस ट्राई की हैं। मैंने डिफरेंट ओलंपिया एथलीट्स की ट्रेनिंग स्टाइल्स ट्राई किए हैं, डिफरेंट फैंसी एक्सरसाइजेस ट्राई किए हैं जो कि इंटरनेट पे मौजूद हैं, लेकिन इवेंचुअली आई केम डाउन टू अ कंक्लूजन कि सिंपलिसिटी विंस। यू शुड कीप एवरीथिंग वेरी सिंपल। बेसिक्स के साथ स्टिक करें। बेसिक्स आर द थिंग्स दैट आर गोना गेट यू रिजल्ट्स। जब तक आप एक बेसिक को मास्टर नहीं कर लेते, यू डोंट नीड टू गो इनटू अ फैंसी एक्सरसाइज। नंबर 7, ट्रैक एवरीथिंग डाउन। ये वो चीज़ है जहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अपनी कैलोरीज को अंडर ट्रैक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल लोग चाय पीते हैं और चाय की कैलोरीज ऐड ऑन नहीं करते। अगर बाहर से कोई चिप्स खा रहे हैं वो ट्रैक डाउन नहीं करेंगे। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इवेंचुअली आपकी कैलोरी काउंट एट द एंड ऑफ द डे बढ़ा देती हैं और आपको लग रहा होता है कि आपका वजन कम नहीं हो रहा, आपके साथ कोई और मसला है। तो ऐसे नहीं होता। यू नीड टू हैव कंसिस्टेंट ट्रैकिंग ऑफ everything that you do, be it your food, be it your workouts. You need to track everything down, and that is when you will start seeing actual results. Number 8, discipline beats talent. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे इस पे, लेकिन ये एक डिबेट बड़ी कॉमन। लोग जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं विद सम गुड फिजिक्स, जिस तरह लोग मुझे भी कहते हैं कि यू हैव गुड जेनेटिक्स, तो आपकी अच्छी फिजिक बन गई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर जेनेटिकली ब्लेस्ड लोग मेहनत नहीं करेंगे या वो एफर्ट पुट इन नहीं करेंगे, और अगर एक बंदा जिसके एवरेज जेनेटिक्स हैं लेकिन वो ही बीट्स द नेल बाय हैमर एवरी टाइम ही इज ऑन टू समथिंग, तो वो बंदा उन लोगों से आगे निकल जाएगा इवेंचुअली। नंबर 9, योर एनवायरनमेंट शेप्स यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू नीड टू बी हैविंग एन एनवायरनमेंट अराउंड यू जो आपके डिसिप्लिन को आपके ऊपर इन्फोर्स करे। जिस तरह अगर आपके फ्रिज में हर वक्त जंक आइटम्स पड़े रहेंगे तो देर आर चांसेस कि आप डेविएट बहुत ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर आपके फ्रिज में आपके पास हेल्दी ऑप्शंस होंगे तो आप हेल्दी ऑप्शंस को खाएंगे। जिस बंदे का गोल अच्छा पानी इनटेक करना है, फॉर एग्जांपल मेरा ये गोल रहता है दिन में, तो आई ऑलवेज कीप अ वाटर बॉटल नेक्स्ट टू मी बिकॉज आई नो कि आई हैव टू डू दिस। और वो वाटर बॉटल जब भी मेरी नज़र पड़ती है तो आई टेक अ फ्यू सिप्स एंड इवेंचुअली ओवर थ्रू आउट द डे मेरा वाटर इनटेक भी पूरा हो जाता है एंड आई हिट माई गोल। तो इसी तरह यू हैव टू इन्फोर्स योर एनवायरनमेंट around you to get better. You should be hanging around with people that push you towards your goal. You should not be hanging around with people जो आपका मजाक उड़ाएं या आपको wear down करें और आपको distractions की तरफ लेके जाएं। ठीक है। Last and most importantly, fitness changes your identity. लोगों को लगता है कि it's all just about health, it's just about having a better body, लेकिन there is a lot more to it. The confidence it gives you, the edges it gives you in certain situation, the talk your physique has to do about you without you even saying a word, the energy that speaks for itself. ये वो सारी चीज़ें हैं that comes into having a disciplined and fitness mindset and a physique that shows it off. आप जब किसी कमरे में एंटर होंगे तो आपकी एनर्जी ऑलरेडी आपके बारे में काफ़ी कुछ बता देगी लोगों को। ये बंदा डिसिप्लिन्ड है, ही ट्रेन्स हार्ड, कि इसने मेहनत की हुई है। ठीक है। When you talk, आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी एक enhanced कॉन्फिडेंस होता है। आप लोगों से अपने आप को you can differentiate yourself from other people by the way you talk. Everywhere you go, people start to notice you because your clothes fit better, because the way you walk has changed, the way you talk has changed, और overall आपकी energy change हो गई है, तो people would start noticing you. और भी बहुत कुछ है। So it is a complete identity change. Similarly, आपका जो mindset develop होता है, pushing yourself hard every day, beating yourself down, and then recovering and then getting back to the same thing each and every day, that is what makes it a challenge. आपके mind को ना एक achievement oriented track दे देता है, तो फिर आप इसको replicate कर सकते हैं हर चीज़ में जो आप ज़िंदगी में करते हैं, चाहे वो business है, चाहे वो आपके career goals हैं, चाहे वो कुछ भी है, कोई भी obstacle आपके आगे है, आप उसको replicate करके उस चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वो 10 चीज़ें हैं जी जो मैंने सीखी हैं और मैं कोशिश की है कि मैं आपको कन्वे करूं। आई स्टिल केप्ट इट शॉर्ट, आई कुड हैव गॉन अ लॉट मोर इनटू डिटेल, लेकिन मैं इन सबको कोशिश करूंगा कि हम जब भी माइंडसेट पर बात करें तो मैं इंडिविजुअली भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूं। सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट चेंजिंग योर फिजिक एंड योर माइंडसेट, दिस चैनल इज़ फॉर यू। सब्सक्राइब,
स्टे ट्यून्ड, हम लोग बहुत सारी चीज़ें अनकवर करेंगे एंड आई विल ट्राई एंड प्रोवाइड यू विद द बेस्ट फिटनेस नॉलेज दैट आई कैन हैव। क्योंकि मैंने अगर कोई चीज़ सीख ली है और मैंने अपना कुछ टाइम इन्वेस्ट किया किसी चीज़ में, तो मैंने अपने साथ नहीं लेके जानी। आई विल स्टिल बी शेयरिंग अ लॉट विद यू एंड आई विल ट्राई कि मेरी इन वीडियोस से किसी का कोई फ़ायदा हो, लोग चीज़ें सीखें, लोग इंस्पायर हों, and we can have a better youth that follows us, and I am able to play my part in whatever I'm trying to do. Jazakumullah khair. See you inshallah. Allah Hafiz.